Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study a very important topic related to international relations, which is 16th BRICS Summit. So as you know that currently abhi 22nd and 23rd October ko 16th BRICS Summit is going to held in Kazan, Russia, and PM Modi is going to visit Russia and attending this summit. Why BRICS is so important, why the global media is looking forward towards this summit. So we'll see this in the session. Okay. Now, PM Modi is scheduled to visit Russia from October 22nd, 23rd to attend the 16th BRICS Summit in Kazan at the invitation of President Vladimir Putin. This will be Modi's second trip to Russia in 2023, following a previous meeting in Moscow in July. Now, what is the theme basically? So the theme of this summit is following multilateralism. Now, what do you mean by multilateralism term? So whenever the alliance of different countries is together for achieving a common goal, that is known as multilateralism. Okay, and that is the theme of this summit. Okay, the theme is strengthening multilateralism for just global development and security. So BRICS countries are looking for multilateralism in achieving what goal? The global cooperation and security for the BRICS countries. Now, what is the BRICS Summit all about? The BRICS Summit is a meeting of 5 major countries. हमको पता है that BRICS, the group has been formed in 2009. Brazil, Russia, India, China and South Africa are the fixed permanent members of BRICS, जिनके नाम पे ही BRICS BRICS जो है वो नाम रखा गया है. Along with that, recently 4 new additional members were joined, in which Ethiopia, Iran, UAE and I think Egypt, Ethiopia, Iran and UAE. These 4 are the other members of BRICS nations. Okay. Now, what is this summit all about? So the main goal is to strengthen cooperation among these nations, especially to promote global development and security. So, ग्लोबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ग्लोबल डेवलपमेंट किस तरीके से हम इसमें सोच सकते हैं? तो देखिए, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, रिसेंटली वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज की 45% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज सक्यूम्ड इन दीज ब्रिक्स कंट्रीज. ओके, तो पहला तो एस्पेक्ट ये हो गया दैट व्हाई दिस ग्रुप और व्हाई दिस अलायंस इज सो इंपॉर्टेंट. एंड अदर थिंग इज 35% of global, you can say that global economy belongs to these countries. Okay, these 5 countries. तो आप खुद सोच सकते हो कि 35% जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी है और 45% जो है वो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज में आती है. सो दीज 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, दिस ग्रुप ऑफ ब्रिक्स वेरी मैसिव in itself. तो इसीलिए हमको सोचना होगा, अगर ये कंट्रीज को हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे या फिर इन कंट्रीज का कोऑपरेशन नहीं होगा, तो ग्लोबल डेवलपमेंट इन अ होल बिकम्स वेरी वेरी काइंड ऑफ सिंपल थिंग, कि हमको लगेगा कि यार पॉसिबल नहीं है. इन एनी वेज इंडिया और चाइना के बिना आप ग्लोबल डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एंड अगर आप ट्रेड के अकॉर्डिंग भी देखो तो इंडिया और चाइना को लिए बिना आप सोच नहीं सकते कि ग्लोबल ट्रेड को आप अच्छे लेवल पे चला सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस ईयर समिट फोकसेस ऑन मल्टीलेटरलिज्म. ये मैंने आपको बताया, which means working together globally in a fair and equal way. Leaders will discuss how to continue existing collaborations and plan new ways to work together for development and security. Fine. Now, economic and political goals. So, see, to be very specific, in this summit, our PM Modi has said that we are not Western. We are not anti-Western, but we are non-Western. So these 2 terminologies are very important said by PM Modi कि हम anti-Western नहीं हैं, but हम non-Western हैं. ठीक है, हम पूरी तरीके से Western के खिलाफ नहीं हैं, but हम एक तरीके से उनको साथ में लेके चल रहे हैं, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी चलती है इंडिया की. ओके, एंड इन दिस वे ओनली व्लादिमीर पुतिन हैज सेड दैट वी हैव टू मेक certain commercial banks, a network of commercial banks within the BRICS countries. ठीक है,
ब्रिक्स कंट्रीज में ही हमको ऐसा नेटवर्क बनाना होगा कमर्शियल बैंक्स का विच विल यूज द लोकल करेंसी फॉर द ट्रेड विद इन दीज कंट्रीज। ओके, तो ये इससे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंस जो है वो डॉलर पे सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो हमारा डॉलर में होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, डॉलर में अगर 80% ट्रेड हो रहा है तो एवरी सिंगल कंट्री बिकम्स अफेक्टेड। अगर डॉलर यूएसए में अगर किसी भी तरह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी भी कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर वो दूसरी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व है और हमारा उनकी तरफ पॉलिसी जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो अलग है, ठीक है, तो उस केस में कंट्रीज जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं ग्लोबली, बिकॉज जो ट्रेड है वो ग्लोबली डॉलर में प्रैक्टिस किया जाता है। दैट्स व्हाई व्लादिमीर पुतिन हैज सेड कि हमको ऐसा नेटवर्क बनाना होगा बैंक्स का कि हम जो है वो अपने जो हमारी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उसमें साथ में ही ट्रेड जो है वो लोकल करेंसी में कर पाए। ठीक है, जब लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, ब्रिक्स की ही करेंसीज में ट्रेड होगा, तो डॉलर पे जो डिपेंडेंस है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करती हैं ये करेंसीज, उन पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी। ठीक है, और उन पे अगर हमारी डिपेंडेंस कम होगी तो डेफिनेटली फिर हम आगे जाके उन पे रिलाय नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमें अगर ऐसा स्टेप अपनी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में लेना है तो हम लें या फिर नहीं लें, क्योंकि हर एक कंट्री के दिमाग में जो है वो यूएस के सैंक्शंस का डर होता है, राइट। अच्छा, एक चीज और है इसमें जो उन्होंने बताई है कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स पर्सपेक्टिव। कोई भी कंट्री अगर अपनी इकोनॉमिकली अच्छे से सॉवरन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि ग्लोबली भी वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर पाएगी, राइट। सो दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस समिट। ओके, Putin believes that BRICS countries can play an important role in boosting global economic growth. He also talks about the economic sovereignty, which means making BRICS countries less dependent on the other nations, particularly Western powers. अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर और आता है जिसमें हम आईएमएफ और यूएन का भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अब आपको पता है दैट यूएन एंड आईएमएफ हैज समहाउ बिकम इनइफेक्टिव लिटिल बिट, राइट। अभी बहुत इनइफेक्टिवनेस जो है वो यूएन में आ चुकी है, आईएमएफ में आ चुकी है, एंड दीज टू बिगर ऑर्गेनाइजेशंस आर पर्टिकुलरली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न पावर्स मोस्टली। ठीक है, तो इस केस में जब अगर हमें किसी भी कंट्री को आईएमएफ बेल आउट पैकेज का अगर उनको रिक्वायरमेंट है, या फिर यूएन में हम सोचते हैं कि यूएन में अगर हमको कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो हमको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट देखना होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं, यूएन रिफॉर्म्स की भी डिमांड है, आईएमएफ रिफॉर्म्स की भी डिमांड है। ठीक है, तो इन सब चीजों में अब हम डिमांड कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स ओवर इट, राइट। अब रिजल्ट्स नहीं है, तो इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, बेसिकली द प्रेसिडेंट पुतिन ही इज थिंकिंग कि हमें इस तरीके का एक ऑल्टरनेटिव रखना होगा कि अगर हमें आईएमएफ है तो उसके हिसाब से हमारा कंट्रीज का एक ऑल्टरनेटिव हो, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो हमारा जो एक अमाउंट बैठ रहा है या फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम अगर ये ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं या फिर हम कोई भी इस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं तो वो हमारे पूरे ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। Putin is pushing for big infrastructure projects like the Arctic Sea Route and the North to South Corridor. ठीक है, एवरीवन नोज कि आर्कटिक सी में जो है वो काफी मिनरल वेल्थ पाए जाने के ऐसे प्रूफ्स मिले हैं, तो दैट्स व्हाई पुतिन इज थिंकिंग कि हमको ऐसा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर या फिर आर्कटिक सी रूट क्रिएट करना चाहिए, जिससे जो हमारा ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का जो एक डिफरेंट रूट हमारे पास हो और हमारे लिए जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, जो इन कंट्रीज है उनके लिए डिस्टेंस काफी कम हो जाए। अगर ट्रेड अच्छे लेवल पे स्मूथली होगा तो जो जीडीपी भी है ब्रिक्स कंट्रीज की वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, दीज प्रोजेक्ट्स एम टू इंप्रूव ट्रेड कनेक्शंस बिटवीन यूरेशिया एंड अफ्रीका, which will help with the transporting goods more efficiently. Now, about the BRICS summit. So, BRICS summit, as I told you earlier, BRICS जो organization है, it was established in 2009 and particularly the BRICS term has been coined by Jim O'Neill. यहाँ पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं। He has coined the term BRICS and BRICS के जो headquarters हैं वो शंघाई चाइना में है।
the major facts are this only. अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो it comes related to the full form, who are the members, how many members are there, what is the established year, what is the where are the headquarters. ठीक है, अभी currently 16th summit है, 15th summit है, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो वी हैव स्टडीड कि द 16th समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट कजान, रशिया. ओके, तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ द नीड ऑफ आर एंड दे आर हेल्डिंग द समिट्स जो ऑर्गेनाइज होती हैं, वो अपने ही लेवल पे जो इनकी थीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, राइट? ओके, सो BRICS summit started in 2009 and its first meeting was held in Russia. BRICS countries together represent about 42% of the world's population and 23% of the global economy. The term BRICS was first used by economist Jim O'Neill in 2001. These countries focus on working together for economic cooperation and political collaboration, often discussing important global issues. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज में जो है वो उनके ही बेनिफिट की बात होती है, बट और भी जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, जैसा कि अगर इस मीटिंग में हम देखें तो हमारा चाइना के साथ भी एक हमने मीटिंग करी है, ठीक है, वहां पे डिस्पाइट ऑफ आर बॉर्डर इश्यूज वट एवर वी आर डीलिंग विद देम, अलॉन्ग विद दैट पीएम मोदी ने यहाँ पे हर एक कंट्री के साथ वो बायलैटरल मीटिंग करने का भी सोच रहे हैं कि उन कंट्री के साथ हम कैसे 1-to-1 रिलेशंस को अपने जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज समिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिप्लोमैटिक perspective of any country, right? So I hope आपको ये समझ में आया हो, इस समिट के बारे में थोड़े आपको insights मिले हों, and thank you for watching my session, guys. Please subscribe to our channel Ecoholics and IS Origin. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.